ہیں اور ادارہ شماریات نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے، عوام پریشان ہے۔ بالکل جی، اور اس کے بعد جو ابھی اشفاق بھی جیسے بات کر رہے تھے، ادارہ شماریات کی جو رپورٹ آئی، لوگ اس سے نہ صرف حیران بلکہ مزید پریشان بھی ہو گئے۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ملک میں رواں مالی سال جولائی تا جون مہنگائی کی جو اوسطاً شرح تھی وہ 8.83% رہی، جبکہ مئی کے دوران جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 10.87% رہی۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ سال کی نسبت شہری علاقوں میں چکن 60%، انڈے 55%، گندم 30%، آٹے کے نرخ 28.5%، مسالہ جات 26.71%، اور جو گھی تھا 22% مہنگا ہوا۔ اور یہ اشیاء خورنوش جن کی ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ چیزیں ہیں، چلے آپ چکن کو آپ لگژری میں کنسیڈر کرتے ہیں، چکن کو آپ نکال دیں، لیکن یہ انڈے، مسالہ جات، آٹا وغیرہ یہ تو سب نیسیسٹیز ہیں۔ چکن لگژری میں نہیں کاؤنٹ ہوتا تھا، لیکن اس کی قیمتیں بڑھا کے وہ چاہ رہے ہیں کہ بکرے کے نرخ تک پہنچ جائے، آہستہ آہستہ چلیں تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ۔ تو جناب 450-500 تک آ گیا ہے اور اب آگے بڑھتا جائے گا، تو پھر جناب پہلے وہ کراس کرے گا بچیا کے گوشت کو، پھر اس کے بعد آگے جائے گا جناب اس تک۔ لیکن بہرحال حکومت کا موقف بھی اس پہ سامنے آیا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے مگر قوت خرید بھی اسی شرح سے بڑھی ہے۔ یہ مجھے ویسے سمجھ میں نہیں آئی، یہ آپ کی بڑھی ہے قوت خرید؟ نہیں جی بالکل بھی، بلکہ قوت خرید ہماری دن بدن کم ہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہم یہ پوچھیں گے ایگزیکٹلی ضرور چودھری صاحب اگر دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ چودھری صاحب ہمیں اس طبقے کا بتائیں کہ جس کی قوت خرید جو ہے نا وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، اور ساتھ میں فواد چودھری یہ بھی کہتے ہیں کہ امید ہے کہ اگلے 2 سال میں عمران خان کی قیادت میں ملک منزل کے قریب ہوگا، بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو بڑا ریلیف ملے گا، اور بہت سارے لوگوں کی نظریں بھی ہیں سرکاری تنخواہ دار طبقے، جی سرکاری، یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے مزید اس چکی میں پسیں گے کہ ابھی جو بجٹ آنے والا ہے کیا وہ عوام دوست ہوگا یا نہیں۔ اور جناب وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہماری اگلی حکومت میں، یعنی کہ ابھی نہیں، اگلی حکومت میں ملک مزید اوپر جائے گا، گروتھ ریٹ بہتر ہونے پر مخالفوں پر ترس آ رہا ہے، ان کی فکر ہے یہ اب ساتھ رہیں گے بھی یا نہیں سے نکلے ہیں۔ یہ بھی 5 سال میں تو انشاءاللہ، اور ابھی اگلے سال یہ اور رفتار بڑھے گی اس کی، اور جو اگلی انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی اس میں پھر پاکستان اور تیزی سے اوپر جائے گا۔ پاکستان انشاءاللہ اور تیزی سے اوپر جائے گا، لیکن مسئلہ عوام کا یہ ہے کہ عوام کہہ رہی ہے کہ یہاں پر مہنگائی بھی کافی تیزی سے اوپر جا رہی ہے۔ کیا کہنے لوگوں کا، آپ کو سنواتے ہیں۔ کاروبار ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہمارے پاس ہم لوگ خود دیہڑی والے لوگ ہیں، دیہڑی کمانے کے لیے اپنے نکلتے بچوں کے لیے بالکل ہم لوگ کی لائف ایسی ہو رہی ہے، نہ ہم لوگ گھر کے نہ گھاٹ کے، بالکل مشکل میں آئے ہوئے، لائف ٹف چل رہی ہے پاکستان کے اندر۔ ایک غریب آدمی کی تو پہنچ سے ہر چیز دور ہو گئی ہے۔ آٹا دیکھیں آپ کیا کلو ہو گیا ہے، چینی دیکھیں کیا کلو ہو گئی ہے۔ جو سرمایہ دار آدمی ہے چلے وہ تو برداشت کر لے گا، ایک روز مرہ کا جو 250-300-500 روپے کی مزدوری کرنے والا آدمی ہے وہ کس طریقے سے سروائیو کرے گا۔ رمضان میں تیل تھا 250 روپے لیٹر، آپ مجھے بتائیں 60 روپے، 50 سے 60 روپے لیٹر، 1 لیٹر پہ بڑھا دیا۔ یار کوئی بولنے والا نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں یہ گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ کون سی مافیا ہے، ان کو کون پکڑے گا، مجھے ایک بات بتائیں۔ لوگ یعنی فاقے کر رہے ہیں، ڈبل نوکریاں کر رہے ہیں لوگ یار، لیکن جب بھی پورا نہیں ہو رہا لوگوں کا۔ عوام تو بھوکی مر رہی ہے بھائی، ہر چیز تو مہنگی ہے، سستی کیا چیز تو کچھ بھی نہیں۔ جی تو خواتین و حضرات، موقف دیکھا آپ نے لوگوں کا کہ کس طرح سے لوگ پریشان ہیں، اور اب ہم جس شخصیت سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایسی شخصیت ہیں جو کہ اکثر صبح کے اوقات میں ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، معیشت کی بحالی کے حوالے سے ہمیں اچھی خبریں دیتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آگے سب بہتر ہوگا۔ تو مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم مزمل، اینڈ اے ویری گڈ مارننگ۔ تھینک یو جناب، ادارہ شماریات کی جانب سے تو اب رپورٹ آ گئی ہے، کہتے ہیں کہ جی جولائی تا جون مہنگائی کی اوسطاً شرح 8.83% ہو گئی ہے، مطلب قیمتیں بڑھی ہی ہیں۔ اعداد و شمار بھی دیے ہیں کہ جی انڈے بڑھے، چکن بڑھا، مختلف چیزوں کی، تو یہ فردر آگے جانے کا امکان ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو تو اندازہ ہے کہ پچھلے سال ایک تو کووڈ رہا، اس کے بعد پورے ملک میں ہوئی تھی بارشیں۔ اچھا، اب جو پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے کھانے پینے کی اشیاء کی، یہ ابتدا ہوئی تھی اس کی گندم اور چینی سے، اس کے بعد سبزیوں پہ بات گئی، پھر سبزیوں سے جو ہے انڈے پہ بات گئی جب جنوری فروری آیا، اور پھر جو ہے گھی تیل پہ بات آئی۔ ابھی میں آپ کا سن بھی رہا تھا کسی کا کہ گھی تیل پہ بھی کوئی شکایت کر رہے تھے۔
अच्छा, कुछ चीजों की प्राइसेस जो है ना वो आलमी मार्केट से लिंक है, उसका आपके मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी। ये जिसमें घी और तेल आता है, चीनी आती है, गंदम आती है। अच्छा, अगर चीनी आलमी मार्केट में ज्यादा है और यहाँ सस्ती होगी ना, तो आपका इतना बड़ा बॉर्डर है, स्मगल हो जाती है यहाँ से। इसी तरह अगर आटा पाकिस्तान में, तो ये भी नाकामी हुई ना, जाहिर है कि किसी हद तक कि हम रोक नहीं पाते। नाकामी इस तरह है कि आपके मुल्क से आपका बॉर्डर कंट्रोल हो ही नहीं सकता आपका, क्योंकि बॉर्डर बहुत बड़ा है। मोर देन 1200 किलोमीटर का बॉर्डर है आपका, पोरस बॉर्डर है। अगर एक गली होती, यूरोप में अगर आप कभी बाय रोड घूमे हो तो वो एक अलग तरीके से कंट्रोल हो सकता है। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं ना, चीज ही नहीं है ना। इंडिया के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ अब आपका थोड़ा बहुत बॉर्डर फेंसिंग हो रही है, ईरान के साथ वहाँ तो काफी बेहतर हो गई है जी, बॉर्डर मैनेजमेंट बड़ी बेहतर जी जी। तो वो जो है ना, अब ये घी और तेल की जो कीमत है ना, वो आलमी मार्केट में तकरीबन जो है ना 100% बढ़ी है। अच्छा, अब ये अगर इन्वेस्टर एजुकेशन बोल रहा हूँ, सॉरी, कंज्यूमर एजुकेशन अगर हुकूमत कर दे और बताए कि जी ये पाम ऑयल बाहर से आता है और ये बढ़ जाएगा और हम आपको जो है कंपनसेट, पाम ऑयल आपको महंगा मिलेगा लेकिन आप फलां चीज लेने जाएंगे आपको सस्ती मिल जाएगी, तो आपका बजट वही रहे, तो ये फिर भी बेहतर हो सकता है। अच्छा, मैंने ये देखा कि ये जरा मिसाल देके एक्सप्लेन कीजिएगा, किस तरह से आप ये कहना चाह रहे हैं? जैसे मैंने पिछले दिनों चिकन बहुत महंगा था, तो मैं जो है ना रमजान के फौरन के मुजम्मिल, पिछले दिनों नहीं, चिकन अभी भी महंगा है। मुझे थोड़ा बहुत जो चिकन की प्राइस कम हुई है वो इस वजह से क्योंकि चिकन में बीमारी आ गई है। मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने ये हरकत की कि जब चिकन महंगा था तो मैं तो ऐसे खरीदता नहीं हूँ चीजें, मेरी वाइफ ने मुझे बताया, तो मैंने कहा क्यों नहीं हम फिश खा लें। तो आपको अंदाजा, मुजम्मिल, तो मच्छी ज्यादा महंगी होती है। ये मछली या मटन ज्यादा महंगा होता है। डिपेंड्स के कौन से ले रहे हैं। आप भी सामन खाते होंगे। रेड स्नैपर ले रहे हैं, वो तो और ज्यादा महंगी है। नहीं, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि मैं खुद लेने चला गया ऑफिस से, मेरा क्योंकि जो है उधर चुनरी का रोड में ऑफिस है, ठीक है, तो मैं ऐसे ही वहाँ से वापसी में जो है फिश मार्केट चला गया। ओके। आपको अंदाजा नहीं होगा, जो सुरमई जो सर्दियों में 900 रुपए केजी मिलती थी, वो मुझे मिली 400 रुपीज केजी। और मैंने जो है तकरीबन 6 केजी जो है 2400 की, उससे 2 बड़े बड़े फिश जो है उससे मैंने उसकी वो फिले बनवाए और उसको मैं लेकर आ गया। क्या बात है। लेकिन ये भी मुजम्मिल आपको 400 के मिली ना। हम बात तो ये कि आम आवाम की दस्तरस से तो बाहर है ना, वो 400 रुपए के अगर एक वक्त का खाना लेगी तो आप खुद सोचे कि वो फिर दिन का तो जो उसका खाना है, फैमिलीज हैं, ये 1200, 1300, 1500 हो जाएगा। अच्छा, भी जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो भी बढ़ी है। ये मवाजना आपको कैसा लगा? आपको लगता है कि लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ी है? आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक या फिर ओनली स्पेसिफिक सेक्टर जिसकी कुव्वत खरीद बढ़ी है? देखिए, जिसका वो सही कह रहे हैं कि जिसका कारोबार है, फॉर एग्जांपल अगर किसी की किसान था, उसकी गंदम थी तो उसकी कुव्वत खरीद बढ़ी है। अगर वो गंदम उगाता था, अगर किसी के जो है मतलब जिस तरह कीमतें बढ़ी, एक दुकान में बहुत सारा, आप ये कह रहे हैं कि आवाम की नहीं बारिश भी हुई है, गंदम महंगी बिकी तो इसलिए गंदम महंगी बिकी तो इसलिए जनाब उसकी कुव्वत खरीद बढ़ गई। तो नहीं, गंदम का जिसका देखें मिसाल है कि अगर किसी के खेत हैं, खलियान है, अगर उसकी गंदम की फसल आई है अभी और उसको पिछले साल 35 रुपए किलो की गंदम बिकी थी और इस साल उसकी 50 रुपए किलो बिक रही है, तो उसकी आमदनी बढ़ गई है, उसकी कुव्वत खरीद बढ़ी है। लेकिन जिसकी सिर्फ तनख्वाह है, जैसे जो बिल्कुल प्योर तनख्वाह में लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी, जिनकी प्योर तनख्वाह है वो बेचारा बहुत बुरे तरीके से फंसा है, बहुत बुरे तरीके से फंसा है। और उनको जो है अगर वो बेचारे पहले सेव करते थे तो सेव नहीं कर पा रहे, और जो पूरे थे वो जो है अब या तो उन्होंने अपनी कट डाउन की है कैलोरीज, या तो उन्होंने जो है बोरो करना शुरू किया है, या अपनी कुछ चीजें बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ये तो नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये आपको एक बात बता दूं, ये एक साइकिल आती है और मार्केट में जो है ना, देखे मैं हमेशा से एक बात अभी आप लोगों की मिसाल दे देता हूँ। मैं अगर आपकी फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए की तनख्वाह होनी चाहिए, आप दोनों में से किसी एक की, मैं आपको कहूँ कि आप मेरे से 50,000 ले लें, बाकी 1.5 लाख की जगह मैं आपको जो है ना खाना सस्ता ला दूंगा, आपको जो है फलां चीज सस्ती दे दूंगा, आप कभी भी नहीं मानेंगे। आप कहेंगे नहीं आप मेरे 2 लाख मुझे दे, बाकी मैं जानू मेरा काम जाने। एक्चुअली जो हमारे सिस्टम में प्राइसिंग थी 2013 से 18 तक हमने बहुत लो रखी हुई थी, जिसकी वजह से लोगों ने प्रोड्यूस करना छोड़ दिया था, क्योंकि लोग कहते थे कि हमारी कॉस्ट ज्यादा है और उसकी प्राइस कम है।
अच्छा ये भी एक नेगेटिव चीज है। अब हमने क्या किया है कि हमने प्राइसेस को बढ़ा दिया ताकि लोग इनकरेज हो कि वो प्रोड्यूस करें। जैसे इस साल गंदम की बम्पर क्रॉप क्यों आई, आपने उसकी जो है 1300 से 1800 कीमत कर दी। अब गंदम 1800 की हो गई है पर मन, तो वो तो महंगी बिकेगी ना। 1800 की हुकूमत ने मन कर दी है, तो अब इसका हल ये है कि लोगों की आमदनी बढ़ाई जाए। मैं खुद जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उनके जो वजीर खजाना है और उनकी टीम से बाकायदा इंटच हूं। ये मुजम्मिल आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी और लोगों की ना काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी हैं आने वाले बजट से कि जो बजट होगा वो आवाम दोस्त होगा, क्योंकि देखिए वैसे देखा जाए तो हमारी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुस्तहकम हुई है। रेमिटेंस जो है उसकी मद में काफ़ी ज़्यादा ज़र मुबादला में आया है। GDP अगर हम बात करें तो ग्रोथ रेट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हौसला बख्श है। इंडिकेटर्स जितने भी तमाम के सारे बड़े पॉजिटिव हैं। अब जो सबसे बड़ी जिस प्रॉब्लम है वो है महंगाई की, जिस पे हुकूमत सबसे ज़्यादा तवज्जो भी दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि कब तक ये जो इशू है ये सॉल्व हो जाएगा लोगों के लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें? देखें जो अगला हाफ है, ये पहले 6 महीने में अभी फर्स्ट लेग में जो है तनख्वाहें बढ़ाएगी हुकूमत। मैं सिर्फ ये एक बात कंप्लीट कर लूं कि अब हुकूमत को ये बात कहनी भी नहीं चाहिए कि हम महंगाई कम करेंगे, वो नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने सिस्टम की खुद प्राइसेस को अप किए ताकि इंकरेजमेंट हो। अब उनको आमदनी बढ़ानी है लोगों की। पहले लेग में मैं समझता हूँ कि ये जो चीजें सेटल होंगी, जो लोगों को महंगाई की हीट महसूस नहीं होगी, वो अगले साल जनवरी फरवरी से होगी। अभी जो है तनख्वाहें बढ़ना शुरू होगी। पहले बजट में हुकूमत बढ़ाएगी, फिर प्राइवेट सेक्टर बढ़ाएगा, और जैसे जैसे मईशत में तेजी आ रही है तो जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी प्राइस सही करनी पड़ेगी, तनख्वाहें सही करनी पड़ेगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल असलम साहब, हमारे साथ अलग मौजूद रहे। और जाहिर है कि कुछ चीज़ें होती हैं, मुश्किल फैसले गवर्नमेंट्स को करने पड़ते हैं, और जाहिर है कि परचेजिंग पावर जब बढ़ जाएगी तो फिर चीज़ें जो हैं वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। अभी भी कई लोगों को फ़ायदे हो रहे हैं, कई सेक्टर्स जो हैं फ़ायदे में। ज़राअत में जो लोग गंदम उगा रहे हैं उन लोगों को काफ़ी फ़वायदे हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारी बेहतर हुई है। एग्जैक्टली, हमारा कंस्ट्रक्शन का जो है हमने देखा कि इंडस्ट्री उसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उसको फ़ायदा मिला है। हमारे कपड़े की जो है, हमारे जो मोटर व्हीकल्स का जो हमने देखा है कि गाड़ियाँ बिक भी रही हैं और पाकिस्तान में भी गाड़ियाँ असेंबल होना शुरू हो गई हैं। सो ये बड़े जो हैं अच्छे इंडिकेटर्स जो हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला है वो ये है महंगाई का। तो उस वाले से भी अब लोग इंतजार करें कि अच्छे जो हैं इंडिकेटर्स जल्दी आना शुरू हो जाएं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी इस पे काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल, और उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं, उनकी जानिब से हिदायत भी सामने आ रही है, और इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि उस पर अमल दरामद भी होगा। इसी के साथ ही एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हासिल होंगे।